अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स को। इस चैप्टर के लर्निंग गोल्स होंगे टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, कैलकुलेट, इंटरप्रेट एंड evaluate the payback period, calculate, interpret and evaluate net present value and economic value added. Also, we'll be able to calculate and interpret and evaluate the internal rate of return. Use net present value profiles to compare NPV and IRR techniques. Discuss NPV and IRR in terms of conflicting rankings and the theoretical and practical strengths of each approach. So, what is capital budgeting? It is the process of evaluating and selecting long-term investments that are consistent with the firm's goal of maximizing owners' wealth. In relating to capital budgeting, we must know the difference between capital expenditure and operating expenditure. Capital expenditure is an outlay of funds by the firms that is expected to produce benefits over a period of time, normally greater than 1 year. An operating expenditure is an outlay of funds by the firms resulting in benefits received within 1 year. So, इसका मतलब यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उससे बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलता है। जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है प्रपोजल जनरेशन, दूसरा रिव्यू एंड एनालिसिस, तीसरा डिसीजन मेकिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और फिर पांचवा फॉलो अप। So proposal generation में proposals for new investment projects are made at all levels within a business organization and are reviewed by the finance personnel. The review and analysis phase है, इसमें financial managers perform formal review and analysis to assess the merits of investment proposals. And in decision making, firms typically delegate capital expenditure decision making on the basis of dollar limits, यानी cost benefit analysis करते हैं. Implementation phases में we'll be following the approval. Expenditures are made and projects are implemented. Expenditures for the last project often occur in phases, यानी एक ही दफा में सारी cost आपकी नहीं लगती, आपको जो है वो स्टेप वाइज जो है वो उस पर एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। और फॉलोअप क्या है? रिजल्ट्स आर मॉनिटर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर कंपेयर्ड विद दोज दैट वर एक्सपेक्टेड। एक्शंस में बी रिक्वायर्ड इफ एक्चुअल आउटकम्स डिफर फ्रॉम द प्रोजेक्टेड वंस। अब अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स कैन बी इंडिपेंडेंट और दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So what are independent projects? They are the projects whose cash flows are unrelated to or independent of one another. The acceptance of one does not eliminate others from further consideration. So independent से मुराद ये है कि वो अलग अलग projects हैं। So एक अगर accept या reject हो रहा है तो उसके decision जो है वो दूसरे project पे कोई खास उसका फर्क नहीं पड़ेगा। फिर mutually exclusive projects, they are the projects that compete with one another, जिनका मुकाबला होता है, यानी एक yes है तो दूसरे को definitely आपको no करना पड़ेगा, so that the acceptance of one eliminates from further consideration all other projects that serve a similar function. फिर कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड फंड्स का और कैपिटल राशनिंग का। सो अनलिमिटेड फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इट इज द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच अ फर्म इज एबल टू एक्सेप्ट ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल रिटर्न। लेकिन राशनिंग क्या है? जब फर्म के पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हों यानी फंड्स हों तो उसने फिर प्रायोरिटाइज करना होता है। So rationing is the financial situation in which a firm has only a fixed number of dollars available for capital expenditures and numerous projects compete for those dollars. So उसमें से हम best one choose करते हैं rationing के केस। फिर
एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच है हमारे पास प्रोजेक्ट्स को रेट करने के लिए, और दूसरी अप्रोच है रैंकिंग अप्रोच. So an accept reject approach is the evaluation of capital expenditure proposals to determine whether they meet the firm's minimum acceptance criteria. So minimum criteria अगर वो fulfill करते हैं तो हम उसको accept कर लेते हैं, otherwise उनको reject कर देते हैं. Our ranking approach is the ranking of capital expenditure projects on the basis of some predetermined measure, such as rate of return. So हम उसकी basis पे, rate of return की basis पे हम जो है वो rank कर लेते हैं. फर्स्ट करें, एक प्रोजेक्ट से हमें 20% आ रहा है, दूसरे से 18% आ रहा है, तीसरे से 16% आ रहा है, चौथे से 22% आ रहा है. तो अब हम इसको रैंक कर लेंगे. हाईएस्ट से लोएस्ट रैंकिंग दे सकते हैं हम, या लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम रैंक कर सकते हैं. सो ये हम रैंकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है. सो ये एक एग्जांपल है. इसी तरह फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पर रैंकिंग भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन. हर मेथड जो हम यूज करेंगे उसकी बेसिस पे हम उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसमें से जो हाईएस्ट रिटर्न पेयर है उसको चूज कर सकते हैं. या फर्स्ट करें उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करती, तो हम नेक्स्ट हाईएस्ट को चूज कर लें. So starting with an example, Bennett Company is a medium-sized metal fabricator that is currently contemplating two projects. दो projects को देख रही है. Project A requires an initial investment of 42,000 and Project B with an initial investment of 45,000. The relevant operating cash flows for the two projects are presented in Table 10.1 and depicted on the timelines in Figure 10. तो ये आपका टेबल 10.1 आ गया. 5 साल इनकी लाइफ है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपकी 42,000 है ए की, और 45,000 है बी की. ए के जो फ्यूचर जो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज हैं वो 14,000 हैं अगले 5 सालों के लिए, जबकि बी का जो है वो पहले साल में हमें मिल रहा है 28,000, दूसरे में 12,000, और फिर अगले तीनों सालों में हमें 10,000 मिल रहा है. सो ये जो था 42,000 हमारा प्रोजेक्ट ए का डाउन एरो से जो हम शो कर रहे हैं ये आउटफ्लो है, और जो 14,000 अगले 5 सालों में हमें रिसीव होना है वो अप एरो से हम शो कर रहे हैं. सो ये इसकी प्रोजेक्ट ए की टाइमलाइन है. प्रोजेक्ट बी की टाइमलाइन में जो 45,000 डाउन एरो से शो हो रहा है ये इसका इनिशियल आउटफ्लो है, और पहले साल हमें 28,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल हमें 12,000 और फिर 10,000 मिल रहे हैं. ये उन टेबुलर वैल्यूज को हम टाइमलाइन पे शो कर रहे हैं. सो अब हम देखते हैं पहला जो मेथड है कैपिटल वेस्टिंग टेक्निक्स में, वो है पे बैक पीरियड. So the payback method is the amount of time required for a firm to recover its initial investment in a project as calculated from cash inflows. So इसका decision criteria क्या है? The length of the maximum acceptable payback period is determined by the management. If the payback period is less than the maximum acceptable payback period, तो उसकी basis पे आप accept कर सकते हैं, और if the payback period is greater than the maximum acceptable payback period, तो फिर हम उसको reject कर सकते हैं. यानी जैसे अभी ये प्रोजेक्ट था हमारे पास 5 years का, सो फर्म डिसाइड कर सकती है कि हमें जो कट ऑफ है वो 3 years पे रखना है. तो अगर तो पे बैक पीरियड आ रहा है फर्स्ट करें 4, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, और अगर पे बैक पीरियड आ रहा है 2.7, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये 3 से लेस है. सो हम जो प्रोजेक्ट ए और बी जो टेबल 10.1 में दिए हुए थे उसकी बेसिस पे हम जो पेबैक पीरियड्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट ए और बी के लिए. सो प्रोजेक्ट ए में चूंकि हमारे पास एन्युटी है तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है. जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 42,000 सॉरी, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमने डिवाइड करना है जो इक्वल एनुअल हमें कैश इनफ्लोज मिल रही हैं. तो जब 42,000 को 14,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3 years. सो 3 years इसका पे बैक पीरियड है प्रोजेक्ट ए का. लेकिन प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड क्या है
चूंकि उसमें हमारे पास अनइक्वल पेमेंट्स थी तो उसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाती है कैलकुलेशंस। सो पहले साल में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस मशीन से प्रोजेक्ट से रिकवर करते हैं 28,000, ठीक। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 45,000 की, तो अब 45,000 माइनस 28,000 आपके पास जो रिमेनिंग कॉस्ट रिकवरी है वो 27,000 है। तो दूसरे साल हमें इसमें से रिकवर हुए थे 12,000। सो 18 जमा 12 2 सालों में हमें मिलते हैं 28,000। सो 28 जमा 12 हमारे पास जमा होके 2 सालों में आता है 40,000 ना कि 28,000। सो हमने 40,000 रिकवर कर लिया। अब हमने 5,000 और रिकवर करना है। सो एट द एंड ऑफ ईयर 3 हमें 50,000 मिलेगा, क्योंकि ईयर 3 में हमें 10,000 मिल जाता। लेकिन आप ये देखेंगे वो पूरे साल में 10,000 मिलता है। सो इसका मतलब यह है कि आपको तो इस अमाउंट को 40 को 45 बनाना था, क्योंकि आपकी जो कैश आउटफ्लो है वो 45,000 है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको 50% कैश फ्लो इनफ्लो ऑफ 10,000 रिक्वायर्ड है, यानी सिर्फ 5,000 रिक्वायर्ड है उसको 45,000 बनाने में, ठीक। सो इसका हाफ हो गया 50%, तो इसका मतलब है उस साल का भी हाफ हो गया। और पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी इसका मतलब है फिर 2.5 ईयर्स होगा। सो 2 ईयर्स प्लस 50% ऑफ ईयर 3 हमें चाहिए प्रोजेक्ट बी को रिकवर करने में। तो इसकी जो पे बैक पीरियड बनेगा प्रोजेक्ट बी का वो 2.5 ईयर्स बनेगा। सो अब आप जो है वो बड़े बेहतर तौर पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफाई करके अपना डिसीजन कर सकते हैं। जिसका पे बैक पीरियड कम है आप उसको प्रेफर करोगे बनिस्बत उसके जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा है। तो इस केस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आप 2.5 इयर्स जो अर्ली रिकवरी है उसको आप प्रेफर करोगे। So the payback period is widely used by large firms to evaluate small projects and by small firms to evaluate most projects. So इसका मतलब है large firms जो हैं वो सिर्फ small projects के लिए payback period use करती हैं, लेकिन जो small firms हैं वो simplicity को सामने रखते हुए almost all projects को वो इसी method से evaluate करती हैं। Its popularity results from its computational simplicity and intuitive appeal। आपको बेहतर तौर पे समझ आती है कि आपकी कॉस्ट की जो रिकवरी है वो जल्दी हो रही है, और इसमें हम पहले कह रहे हैं कि इसकी जो कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। So by measuring how quickly the firm recovers its initial investment, the payback period also gives implicit consideration to the timing of cash flows and therefore to the time value of money। So timing को जो है ये obviously जहन में रख के और फिर time value of money को जहन में रख के ये टेक्निक बहुत बेहतर है। Because it can be viewed as a measure of risk exposure, many firms use the payback period as a decision criteria or as a supplement to other decision techniques। So इसको यूज जरूर करते हैं, बाकी जो है वो टेक्निक्स भी लिखते हैं यूज करते हैं, लेकिन इसको भी सपोर्ट में यूज करते हैं, और बहुत सारे मैनेजर्स इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज करते हैं। हमने पहले कहा कि वो इसकी सिंप्लिसिटी या सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन जो है वो अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले करती है इस डिसीजन को करने में। The major weakness of payback period is that the appropriate payback period is merely a subjectively determined number। So ये subjectively determined number है। अभी जो जैसे हम कह रहे थे कि 10,000 तीसरे साल मिलता है और उसका हमें सिर्फ 5,000 ही चाहिए था, जो कि 50% बनता है, इस वजह से हमने 0.5 ईयर बना। अब ये तो लाजमी नहीं है कि पहले 6 महीनों में ही आपको 5,000 मिल जाए। बाज़ औक़ात आपकी सेल्स बहुत स्लो होती है,
और वो ईयर एंड पे बड़ा पिक करती है। तो ये भी हो सकता है कि हमें शायद 11th मंथ में 5,000 मिले, तो इसलिए ये चूंकि सब्जेक्टिव मेजर है तो हमें ऑब्जेक्टिव जो कैलकुलेशन है टाइम की वो नहीं कर पाते हम। It cannot be specified in light of the wealth maximization goal because it is not based on discounting cash flows. So, चूंकि इसमें time value of money के concepts को use करके हम discount नहीं करते to determine whether they add to the firm's value. क्या वाकई ये asset जो है वो firm value बढ़ाने में हमें help करेगा या नहीं करेगा, ये decision करने में हमें बहुत problems होती हैं। A second weakness is that this approach fails to take fully into account the time factor in the value of money. वो हम पहले कह रहे हैं कि time factor को जो है वो completely जो है वो account for नहीं कर पाता। Third weakness of payback is its failure to recognize cash flows that occur after payback period. So payback period के बाद शायद हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे होते, तो हम उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट जहाँ पे रिकवर हो रही है वही हमारे लिए वही टाइम हमारे लिए डिसीजन क्राइटेरिया बन जाता है और उसी की बेस पे हम यस और नो करते हैं। अच्छा जी, अब हम फोकस ऑन प्रैक्टिस को देखें तो लिमिट्स ऑन पेबैक एनालिसिस क्या है। While easy to compute and easy to understand, the payback period simplicity brings it with it some drawbacks. Whatever the weaknesses of the payback period method of evaluating capital projects, the simplicity of the method does allow it to be used in conjunction with other more sophisticated measures. In your view, if the payback period method is used in conjunction with NPV method, should it be used before or after the NPV evaluation? So ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बन गया है। क्या आपने इसको पॉन्डर करना है, क्या आप इसको एनपीवी के साथ अगर यूज करते हैं तो आप इसको एनपीवी से पहले यूज करेंगे या एनपीवी के बाद यूज करेंगे। सो एनपीवी की अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स की पहले हम कैलकुलेट कर लें, एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव सारे हम एनपीवी की बेस पे देख लें और फिर हम उनको कंपेयर करने के लिए जो पेबैक पीरियड है वो यूटिलाइज करेंगे, किस में हमें कॉस्ट रिकवरी जल्दी हो रही है। तो ये एक इफेक्टिव रैंकिंग टेक्निक हो जाएगी हमारे पास कि हम पहले एनपीवी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर हम पेबैक पीरियड जो है इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम उसको बेहतर तौर पे रैंक कर सकें। तो बेस्ट अल्टरनेटिव तब हम चूज कर पाएंगे। So ये एक एग्जांपल देखते हैं हम। सीमा मेहदी is considering investing 20,000 to obtain a 5% interest in the rental property. सीमा is in 25% tax bracket, जो tax bracket है उसका 25% है। A real estate agent conservatively estimates that the SEMA should receive between 4,000 and 6,000 per year in cash from a 5% interest in the property. तो उससे जो इनकम होगी वो 4,000 से 6,000 पर ईयर हो सकती है। SEMA's calculation of the payback period on this deal begins with calculation of range of annual after tax cash flows. सो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है 1 माइनस टैक्स रेट इनटू प्री टैक्स कैश फ्लो। सो 4,000 पे देखें हम तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बनता है 1 माइनस 0.25 से मल्टीप्लाई करके वो बनता है हमारे पास 3,000 और जो 6,000 पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बनता है 4,500। अब उसी को अगर हम फर्दर देखें तो थीम वही है 20,000, 5% interest on rental property, SEMA is in 25% tax bracket. Dividing the 20,000 initial investment by each of estimates after tax cash flows जो थे
तो उससे हमें पता लगेगा कि 20,000 को जब 3,000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा पे बैक पीरियड बनता है 6.67 ईयर्स, और जब हम 4500 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पे बैक पीरियड बनता है 4.44 ईयर्स। सो अब कौन सी ऑप्शन उसको बेस्ट लगती है? ऑब्वियसली जिसमें पे बैक पीरियड कम है, तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि 4.44 ईयर्स में उसके जो 20,000 है वो रिकवर हो जाए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, रेलेवेंट कैश फ्लोज एंड पे बैक पीरियड्स फॉर डीआर मान एंटरप्राइजेस और उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट गोल्ड और प्रोजेक्ट सिल्वर। दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 और 5 साल उसकी टोटल कैश फ्लोज हमें फ्यूचर में मिलेंगे। उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है वो इनिशियल प्रोजेक्ट के हैं 5,000, 5,000, 40,000, 10,000 और 10,000, जबकि जो प्रोजेक्ट सिल्वर है उसमें 40,000 हमें पहले साल में रिकवर हो रहा है, फिर 2,000, फिर 8,000 और फिर 10,000 और फिर 10,000। सो इस तरह से अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दोनों का पे बैक पीरियड 3 इयर्स में आ रहा है। देखिए आपकी जो प्रोजेक्ट गोल्ड है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, पहले साल में रिकवर हुआ 5,000, फिर अगले में 5,000 और ये तीसरे साल में 40,000, तो टोटल ये 50,000 आपका 3 साल में रिकवर हो जाता है। और अगर आप प्रोजेक्ट सिल्वर को देखें तो 50,000 में से 40,000 पहले साल में मिल जाता है, फिर 2,000 अगले साल में मिलता है और 8,000 तीसरे साल में, तो ये तीनों मिलके जो है वो 50,000 बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके भी पे बैक पीरियड जो है वो 3 इयर्स। सो अब इसमें हम क्या चूज करें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का पे बैक पीरियड तो सेम है। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन देखें तो प्रोजेक्ट सिल्वर में मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट आपको पहले साल में रिकवर हो जाती है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ये आपको बेस्ट ऑप्शन मिलती है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट गोल्ड जिसमें तीसरे साल में आपको 40,000 रिकवर होगा। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो प्लीज़ उसको पूछ लीजिए। अगर हम इस कंपनी जो राशिद कंपनी है उसके अल्टरनेटिव्स को देखें तो 10,000 और 10,000 कॉस्ट है, लेकिन आप देखें कि 5,000 इसकी पहले साल में रिकवरी हो रही है और 5,000 दूसरे साल में, तो प्रोजेक्ट एक्स की जो पेबैक पीरियड आ रहा है हमारे पास वो 2 इयर्स आ रहा है। जबकि प्रोजेक्ट वाई को देखें तो पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 4,000, तीसरे साल में 3,000 और इसका पेबैक पीरियड 10,000 जो रिकवर हो रहा है वो 3 साल में हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी जो राशिद कंपनी है वो ये फैसला करती है कि वो 2 इयर्स चूंकि पेबैक पीरियड कम है प्रोजेक्ट एक्स का और इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो मेरे हिसाब से वो गलती कर रही होगी क्योंकि वो ये फ्यूचर कैश फ्लोज को इग्नोर कर रही है। तो ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उसके बाद जहाँ पे रिकवरी हो रही है कॉस्ट की, उसके बाद के कैश फ्लोज को वो इग्नोर करता है। तो अगर उन कैश फ्लोज को इग्नोर कर दें हम, तो इस हिसाब से तो प्रोजेक्ट एक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस राशिद कंपनी के लिए वायबल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए इस कंपनी को सिर्फ पे बैक पीरियड पर रिलाई करना मुनासिब नहीं है। अगर वो सिर्फ इसी पर रिलाई करती है तो वो गलत डिसीजन करेगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक्स के टोटल कैश फ्लोज 5 सालों में वो 11,200 बनते हैं और प्रोजेक्ट वाई के 17,000 बनते हैं। तो आप 10,000 इन्वेस्ट करके 11,200 ले रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स में और 10,000 इन्वेस्ट करके 17,000 रिसीव कर रहे हैं प्रोजेक्ट वाई में। तो सिर्फ पे बैक पीरियड इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे और उसकी बेस पे डिसीजन करना इस कंपनी के लिए वायबल सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए उसे इसके साथ कोई और मेथड भी यूज़ करना होगा, फॉर एग्जांपल एनपीवी यूज़ कर ले या आईआरआर यूज़ कर ले। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।